Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हो यार आप सब? You must have seen the thumbnail obviously, so you know what we are going to talk about in this video. But before proceeding, I would like to ask you a question. Like, what do you think? Why did Elon Musk stop receiving Bitcoin as a payment? Let me guess the keywords. Fossil fuels, energy consumption, damage to the environment. Is this it? Na. These are not the only reason. There is a bigger picture to it. Let's decode in this video. Watch it till the end. So Elon Musk has tweeted about a new relationship between Tesla and Bitcoin on May 13. Let's have a look into it. So he said, Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin. We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuels for Bitcoin mining and transactions, especially coal, which has the worst emissions of the fuel, blah, 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 blah. We are also looking at other cryptocurrencies that uses less than 1% of Bitcoin's energy per transaction. तो कितना यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं बिटकॉइन. तो बिटकॉइन 707 किलोवाट आवर्स पर ट्रांजैक्शन कंज्यूम करता है. 1% ऑफ 707 इज़ रफली अराउंड 7%. 7 के नीचे कौन कौन लाई करते हैं? XRP हो गया, डॉजकॉइन हो गया और कार्डानो हो गया. तो डॉजकॉइन यूज़ करता है 0.12 किलोवाट आवर्स पर ट्रांजैक्शन. एंड we all know that Elon Musk is bullish on Dogecoin. He is working with their team to make Dogecoin a public currency. You may see Tesla using Dogecoin for the payments. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने पूछा था कि do you want Tesla to accept Doge? Then 78.2% people said that yes. तो लोग अभी बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को लेके कंसर्न है कि बिटकॉइन इतना एनर्जी कैसे यूज़ कर रहा है. तो देखते हैं कि बिटकॉइन एक्चुअली में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है. Division of the Cambridge Center for Alternative Finance, the department estimates the crypto's annualized energy consumption to be around 127.48 terawatt hours. When compared to electrical output of the nation states, Bitcoin's consumption is less than that of 28 countries. In the league table, it sits sandwiched between Ukraine and Argentina. तो अर्जेंटीना से भी ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करता है, which is a fact. तो बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल गोल्ड है. तो गोल्ड कितना कंज्यूम करता है पावर चलिए देखते हैं. ओरिजिनल गोल्ड mining industry, which produces between 2,500 to 3,000 tons of new gold every year, consumes 475 million gigajoules of electricity, which is equal to around 131.9 terawatt. और बिटकॉइन कितना कंज्यूम करता है? 127.48 टेरावाट. तो ओरिजिनल गोल्ड को माइन करने में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड. बिटकॉइन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कितने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और कितने रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आइए देखते हैं. 76% crypto miners use renewables as the part of their energy mix. The study found that 39% of total energy consumed by POW, that is proof of work cryptocurrencies, include Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash and other, comes from the renewable energy resources. According to the latest study, hydroelectric power is the most common source of energy for miners. Almost 62% of miners are reported to be using hydroelectricity. Coal and natural gas sources take the second and third spots at 38% and 36% respectively. So wind, oil and solar energy are the three common energy sources for cryptocurrency miners. अगर देखा जाए तो 76% जो माइनर्स यूज़ कर रहे हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनर्जी इम्पैक्ट करता कैसे है. तो इसके दो वजह हैं. एक, लोकेशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा. दूसरा, इक्विपमेंट्स जो हम माइनिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. तो अगर हम ये चार्ट में देखेंगे तो फरवरी 2019 से फरवरी 2020 तक हैश रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. हैश रेट क्या है? जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो डिफ़िकल्टी रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर पावर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो अगर हम नीचे आएंगे तो देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द इम्पैक्ट केम फ्रॉम द माइनिंग इक्विपमेंट. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस वाज द लोकेशन ऑफ द माइनर्स. So the results also concluded that the environmental impact would decrease
if equipment becomes more efficient or if miners relocate to colder climates where less energy is needed to cool the computers. तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इलॉन मस्क को ये सब चीज़ें नहीं पता थी? क्या उसे नहीं पता था कि इतना एनर्जी कंज्यूम होता है और इतने रिन्यूएबल्स हैं और इतने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं? उसे पता था। अगर हम ये ट्वीट देखेंगे जो जैक डॉर्सी ने किया है कि बिटकॉइन इंसेंटिवाइजेस रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसने लिखा है ट्रू, और ये ट्वीट है अप्रैल 21, 2021 का। तो फिर ये पीआर स्टंट करने का क्या मतलब बैठता है? ये अपडेट्स डालने का क्या मतलब बैठता है कि नहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रहा है, हम ड्रॉप करते हैं? चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको टेस्ला के रेवेन्यू मॉडल को समझना पड़ेगा कि टेस्ला पैसे कैसे कमाता है। लेट्स लुक इनटू इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा आपका टाइम एक्स्ट्रा लूँगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है। टेस्ला का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेनली उसके एनवायरमेंटल क्रेडिट्स बेच के आता है, उसके जो रिन्यूएबल क्रेडिट्स रहते हैं वो बेच के आते हैं। क्या होता है ये देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि वो 2020 में कितना प्रॉफिटेबल रहा। तो अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे टेस्ला's टोटल रेवेन्यू हिट 6.04 बिलियन फॉर द क्वार्टर with about 7% of that or 428 million coming from the sales of these credits. To put that in perspective, regulatory credit sales were greater than the company's free cash flow and amounted to be 4 times Tesla's 104 million of the net profit of the quarter. क्या है ये credits? आइए देखते हैं. In California and at least 13 other states, any auto manufacturer who wants to sell their cars in that state must sell a certain amount of electric, hybrid electric or other zero emission vehicles. Automakers who are not selling these vehicles yet or not selling many of them anyway will buy credits from someone who is more compliant. Since Tesla only sells ZEVs, it does not need to keep the credits and it earns and can sell them before they expire. तो टेस्ला एकमात्र कंपनी है जो कि ZEVs बना के बेच रही है और उसको क्रेडिट मिलता है और उसको कोई क्रेडिट की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो अपने क्रेडिट दूसरी कंपनीज़ को बेचती है ताकि वो ये 13 स्टेट में अपने कार्स बेच सकें। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, Fiat Chrysler made a deal with Tesla to comply with the new European environmental regulations coming into play in 2021. In their most recent shareholder update, FCA disclosed that as of March 31st, 2020, its agreements represent total commitments of 1.1 billion euros. And this deal was a boon to Tesla. टेस्ला 4 साल से इसी की वजह से प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो अपने क्रेडिट बेच के अपने प्रॉफिट्स जनरेट करता है और आज वो S&P 500 इंडेक्स में एंट्री करने वाला है इसके वजह से। 1.6 बिलियन इन रेगुलेटरी क्रेडिट्स इट रिसीव्ड लास्ट ईयर फार आउटवेड टेस्ला's नेट इनकम ऑफ $721 million, मीनिंग टेस्ला वुड हैव अदरवाइज पोस्टेड ए नेट लॉस इन 2020। अगर मैं रीसेंट 2021 क्वार्टर की बात करूँ तो Tesla recorded another profitable quarter in the first 3 months of 2021, even with 2 of its models on the sidelines, posting a net income of $438 million while recording $10.4 billion in revenue. इसके मेजरली 2 रीजन्स हैं इतने प्रॉफिट होने के। फर्स्ट, emission credits accounted for $518 million in revenue in a quarter that saw a pre-tax income of $533 million. And a net income of $438 million on a GAAP basis. GAAP बेसिकली जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करके आपको अकाउंटिंग्स करना होता है। तो ये प्रॉफिट क्रेडिट्स बेच के हुए हैं। दूसरा उसका मेजर प्रॉफिट किस लिए हुआ है? सेकेंड आइटम दैट हेल्प टेस्ला वर सेल्स ऑफ बिटकॉइन, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ विच अमाउंटेड टू $101 million. तो जो टेस्ला है, टेस्ला इज़ मेकिंग मोर मनी by selling credits and Bitcoin, not by selling cars. तो अगर आप देख रहे होंगे कि टेस्ला ने एक मोनोपोली काइंड ऑफ क्रिएट करके रखा है और ये जो 13 स्टेट्स में अगर आपको कार बेचने हैं तो देन यू नीड रिन्यूएबल क्रेडिट्स, और सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके पास ये रिन्यूएबल ऐसे क्रेडिट्स हैं और बाकी कंपनीज उससे वो खरीद रही हैं। तो ये काइंड ऑफ उसने एक मोनोपोली ऐसे बना के रखा है। लेकिन क्या ये ज़्यादा देर तक सस्टेन करेगा? नो। तो कंपनीज़ जो हैं वो अभी खुद के अपने EVs बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ताकि ये जो पॉलिसी है ये उसके साथ वो मीट कर सके। तो टेस्ला का जो ये क्रेडिट अर्निंग मॉडल है
वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन जब तक है वो प्रॉफिटेबल है। जैसे अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो स्टेलेंटिस जो कि एक कंपनी है विच स्पेंट अबाउट 2 बिलियन यूरोज टू बाय यूरोपियन एंड यूएस CO2 क्रेडिट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टेस्ला ओवर द 2019 to 2021 period. Now they have started their own production, and CEO says that we will not need to call on European CO2 credits, and FCA will no longer have to pool with Tesla or anyone, as they have started their own EVs in the market. तो Stellantis ने तो स्टार्ट कर दिया, तो टेस्ला का नेक्स्ट मूव क्या होगा? सो लेट्स लुक इनटू द टेस्लाज $1 billion प्लान। सो ये न्यूज़ एक हफ्ते पहले आया। टेस्ला सीक्स एंट्री इनटू US रिन्यूएबल फ्यूल क्रेडिट मार्केट। Tesla is seeking to enter the $1 million US renewable credit market, hoping to profit from Biden's administration march towards new zero-emission goals. Electric car maker is one of at least 8 companies with a pending application at the Environmental Protection Agency tied to power generation and renewable credits. कितना बड़ा मार्केट है ये? The market generated some 18 billion credits in 2020 and is currently dominated by ethanol producers. Tesla's application would likely be tied to production of electricity associated with biogas. तो टेस्ला अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में एंट्री कर रहा है। क्यों कर रहा है? सुपर चार्जर्स में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टेस्ला अनवील्स न्यू मैप ऑफ अपकमिंग सुपर चार्जर स्टेशन, एड स्टेशन अपडेट। तो ये मैप में जितने भी आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे टेस्ला के सुपर चार्जर्स हैं, और ये और ज़्यादा इसको बढ़ाने वाला है। ये उसके नए मैप आए हैं जहाँ पे वो नए सुपर चार्जर्स इंस्टॉल करने वाला है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वो जो सप्लाई करेगा वो बायोगैस से निकलेगा, और इसके लिए उसने अप्लाई किया है। तो अब रिलेशन समझ में आ रहा है कि क्यों वहाँ पे वो बिटकॉइन वगैरह वगैरह सब चीज़। Elon Musk is a businessman, is a tech enthusiast, is a disruptor. But remember, first he is a businessman. दोस्तों ये तो हो गया जो टेस्ला के साथ उसने जो रिलेशन ब्रेक किए हैं, बट मेरे लिए कंसर्न कुछ और ही है। तो जो न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो रिसेंटली कल ही ये आया है दैट माइकल बरी रिवील्स a $530 million bet against Tesla. Michael Burry is long puts against 800,100 shares of Tesla or $500 million by the end of the first quarter, according to the filing with the US Securities and Exchange Commission. अगर आप माइकल बरी को नहीं जानते then you must know him. He was one of the first investors to call and profit from the subprime mortgage crisis जो 2008 में financial crisis हुआ था. He is that guy, and I mean I take his words very very seriously. Recently the GameStop thing, if you know, then Michael Burry made around $270 million from the GameStop stock situation, and he's damn intelligent dude. तो अगर आप देखेंगे तो फेब से टेस्ला के शेयर्स धीरे धीरे फॉल होना चालू हो गया। इन मार्केट इफ यू सी एवरीवन इज बुलिश ऑन टेस्ला। कैथी वुड, जमात पलिया-पितिया, मार्क क्यूबन, वॉरेन बफे, बट दिस गाय इज शॉर्टिंग टेस्ला स्टॉक्स। कुछ बड़ा होने वाला है दोस्त। लेट्स मीट इन फ्यूचर फॉर श्योर।